Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Shami Jafri, and with us, our beautiful co-host Miss Momina Sundar Sayyida. Assalamu alaikum everybody. Oh, I love how you're looking into that camera. हाँ तो And अब I'm मैं क्या looking at करूँ? you. So that's यार really लोगों ने हमें interesting. बहुत मिस किया, हमने भी बहुत मिस किया ये. I know. अभी People तक- loved the last podcast. है ना? Did you see the comments? कौन सा अभी वो तुमने लगा दिया? नहीं, but I just like मैं क्या बोलूँ? पागल expose कर दिया. We haven't even uploaded. That's uploading today. So we're recording this like almost 3 days. यार मुझे वो days in लिंक और advance. थंबनेल भेज देना प्लीज. Link और thumbnail? हाँ ताकि क्यों? मैं स्टोरी पे लगाऊँ ना. Oh हाँ. अच्छा खैर कैसे हैं आप? यार ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है. मैं बहुत ऊंची तो नहीं हूँ? No, you're अच्छा. fine. You're fine. हम्म. Today is I was going to say today is the 11th of Muharram. We haven't recorded in the past 3-4 days. हमने मुहर्रम में एक भी नहीं किया. अच्छा ये नहीं बताना लोगों को. नहीं हमने कौन सा मुहर्रम में कौन सा किया है? Last podcast हाँ. was done on 5th. अच्छा हाँ. हाँ. अच्छा मुझे लगा कि वो उसके बाद अपलोड होना था. किसके बाद? मुहर्रम के बाद. मुहर्रम के बाद ही अपलोड होगा. Like मुहर्रम के बाद नहीं, like 10 मुहर्रम के बाद. So it's uploading today. अच्छा. And we are recording this on the 11th of March, just for the हाँ, clarity. अच्छा, Basically, people need to ठीक know कि हम लोग कब record कर रहे हैं, ठीक कब है, नहीं कर रहे, ठीक so है, they ठीक। understand कि हम just context में बात करेंगे. हो सकता है वो events already old हो और चुके हों हाँ। और हम लोग बात कर रहे हो. But anyways, what's up, partner? यार कुछ भी How's नहीं. life? बहुत Introduce भाग yourself to Hey, the new I viewers. am Dr. Momina Sundar Sayyida and I'm a dentist and I'm Shabi's cousin. This is my identity now. This is my identity now. You're getting all teary-eyed. नहीं. अच्छा. साथ ही. Heartless. Oh my God. No, I'm good. Heartless. Completely. Senseless, heartless. नहीं, एक second. तो तुम so people who are dentists they can call themselves doctors? Yes. That's not fair. Like I think that's not how क्यों? it should be, because dentists are different people. Dentists are primarily basically for क्या बोलते हैं इसको? Specifically for dental. For dental हाँ. surgeries and stuff like that. Mhm. But a doctor actually save lives. हमने इतनी लाइव से तुम्हें पता है कि जियाउल हक की बॉडी किसने आइडेंटिफाई की थी? किसने? डेंटिस्ट ने. उसका सिर्फ जॉ मिला था. जियाउल हक की था. प्लेन में कौन क्रैश प्लेन क्रैश में जियाउल हक ही थे ना. हाँ. Yeah. उनका किसने आइडेंटिफाई किया था? मतलब पीछे जो मेरे बचाया क्यों नहीं उनको? यार वो तो बल्ला भी है क्या हाथ में यार ऐसे नहीं, ठीक है, लेकिन I'm just saying before this gets controversial. I take back what I said. हाँ No, वो listen, तो अल्लाह listen. मियाँ के हाथ में I है. think okay, identification के लिए तो तुम वो बन जाओ. वो जो होते हैं वो जो डायनासोर्स ढूंढते हैं, क्या होते हैं वो मुझे क्या पता क्या होता है. हाँ? Archaeologist. आर्कियोलॉजिस्ट वो नहीं होते. आर्कियोलॉजिस्ट या नहीं यार, वो फ्रेंड्स में रॉस कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं. What does Ross do in Friends? In Friends, he Ross? makes people laugh. Wait. No, it's a paleontologist. What? Paleontologist. The Paleontologist. doctors of the dinosaurs. हाँ तो मैं अब ले ऐसा थोड़ी कि हर एक No, जो so जो they- भी they find- स्पेशलाइजेशन है मैं कर लूँ just No, I'm just saying कि तो तुम paleontologist. So मैं paleontologists तो are dental in. surgeon. Would you say a dental surgeon is higher in regard than the paleontologist? People who are looking नहीं, for dinosaurs. नहीं I- नहीं मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि कोई भी प्रोफेशन किसी से बेहतर नहीं है. है अब ना, doctors are better than dentists. तू जो मर्जी कह ले. यार I'm joking. अच्छा तुमने भी ठीक बहुत स्ट्रगल किया है, मैं समझता हूँ. कर रही हो. अभी भी कर रही हो. सही है. मुझे याद है एक दफा हम लोग बाबा का क्योंकि हार्ट का सीन है ना तो हम लोग एक दफा बाबा दांत दिखाए. नहीं मैं बताती हूँ. Check your heartbeat. Show me your teeth. देखते दांतों में कितनी फील हो रही है. टक टक इस दांत में फील नहीं हो रही. अच्छा गए थे एक दफा हम लोग गए वहाँ पे क्या कहते बाबा को मैं लेके गई डॉक्टर के तो ना उसने ECG की बाबा की ना तो एंड में मुझे ना देख के कहता है कि पता नहीं क्या बाबा ने बताया कि ये भी हाँ मुझे समझा रहा हो तो मैंने कहा अच्छा हाँ मुझे 1-2 टर्म्स पता थी तो मैंने ना ठक मार दी उसके मुंह पे कि ओ अच्छा ये P वेव है ये Q वेव है. तो कहता आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा मेडिसिन से हूँ डेंटिस्ट्री की है. हाँ जी अब तो डेंटिस्ट को भी हम डॉक्टर ही मानते हैं चले ये समझ ले मेरे.
और मैं थी कि अच्छा ठीक है, बड़ा एहसान है, आपने मुझे डॉक्टर मान लिया है, मतलब कि इसमें अच्छा डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की आपस में लगती है थोड़ी थोड़ी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों फील्ड्स ही अलग है ना, काइंड ऑफ। ऑल्दो हमें नॉलेज होता है कि अच्छा, क्योंकि हमारा सिर्फ दांतों के साथ वो नहीं होता रिलेशन। अगर तुम्हारी नी रिप्लेसमेंट भी हुई है ना तो मैंने तो तुम लोग का किसी के साथ नहीं। पर्सनल जोक, सॉरी, कैरी ऑन। No, I'm sorry, I take it back. Get this out, okay? Don't. अच्छा हाँ, sorry. Time नहीं ना मिलता. That's my point. Not that you're not interesting or anything. I'm just saying. हाँ, I am not interested. हाँ, she's not interested. Not that she's not interesting. Understand? What he said, yeah. Yes. अच्छा हाँ. अच्छा खैर, क्या बात कर रहे थे? कि डॉक्टर्स का, कि डेंटिस्ट का खाली दांतों के साथ रिलेशन नहीं होता, और भी अगर तुम्हारी हार्ट सर्जरी हुई हुई है या तुम्हारी नी रिप्लेसमेंट हुई हुई है तो तब भी मुझे बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें देख के करनी है, ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारी नी रिप्लेसमेंट हुई हुई है, या मतलब किसी की भी नी रिप्लेसमेंट हुई हुई है, या हिप रिप्लेसमेंट हुई हुई है, या हार्ट सर्जरी हुई हुई है, या हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, ऐसा बोलो, ऊंचा बोलो, हार्ट, फिर मेरी आवाज़ आहिस्ता कर दो कानों से, तो मुझे पता हो कि हो क्या रहा है। अगर मैं तुम्हारा बस, तो मेरे पास अगर एक पेशेंट मेरे पास आया है और मैं उसका दांतों पे टेस्ट करना शुरू कर देती हूँ और उसके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है और मैं इलेक्ट्रिक टेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे तो सारे टेस्ट ख़राब आ गए ना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में एक चीज़ पड़ी हुई है, फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, जो आपकी चीज़ों को, आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रही है और आपकी सारी चीज़ों को, आपके सारे टेस्ट वगैरह को रेगुलेट कर रही है। You know, these kind of things just go over me. Like, नहीं, मैं तुम्हें तभी लेमन टर्म्स में बता रही हूँ ना, कि अगर आपका हार्ट का भी किसी का कोई मसला है, या आपकी कोई मतलब दूर परे की भी कोई चीज़ है, तो हमें तब भी डेंटिस्ट को वो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने रिलेट करके बात करनी होती है, हमने रिलेट करके ट्रीटमेंट करना होता है। I understand. What does that do to better my life? Yeah. It improves your dental hygiene and it makes your life healthier and your I remember I was shooting a vlog with Sundas once, and I was like, Sundas, you know, as a dentist, like, what would you recommend? Like, should I brush my teeth once or twice? And Sundas and Sundas goes like, you know, every person in the world should do the toothbrush twice a day. And she was so passionate about it. I'm like, तो तुम करती हो? कहती नहीं. Straight up, like, without a break, she's like, नहीं. मैं तो नहीं करती. लेकिन नहीं, मैं करती हूँ. It's difficult, यार. It's difficult to brush your teeth more than twice a day. लेकिन रात को तो करके सोना ही सोना है, जो मर्जी हो जाए. सुबह उठ के तो करके ही उठना है. रात को sometimes I skip, sometimes I do. हाँ, सुबह का तो क्योंकि आपकी बचपन से आदत बनी हुई होती है ना, लेकिन no, रात का मैं तो बताती हूँ. It's just that, like, you know, obviously, like, bad breath. Like, bad breath, I feel like. वो नहीं होगी ना अगर रात को करके सोगे, सुबह उठ के माउथ वॉश करोगे. Actually? Yeah. मैं बताती हूँ. देखो ना, रात का ये सीन होता है कि रात को तुमने समझो 12 बजे कर लिया, तुमने 1 बजे कर लिया, तुम्हारी मिनिमम भी अगर टाइम सोने का, तुम्हारी स्लीप 6 आवर्स है या 7 आवर्स है, तो तुम्हारे 6 आवर्स 7 आवर्स मुंह में बैक्टीरिया नहीं है. जो तुम्हारे फूड रेमिनेंट्स थे, जो तुम्हारी फूड इंफेक्शन हुई थी, वो तुम रात को ब्रश करके सोगे. ओके. ठीक है, तो वो तुम्हारे मुंह में नहीं होगी. सेकेंडली, जब हम सो रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो होती है ना, स्लो हो जाती है. बॉडी फंक्शंस जो होते हैं हमारे स्लो हो जाते हैं. हमारा ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, हमारा थूक, सेलिवेशन जो होती है वो कम हो जाती है. अब सिंस हमारे मुंह में सेलिवेशन कम है, तो वो बैक्टीरिया को स्वीप ऑफ नहीं कर रहा, बट हमारे सलाइवा का ये फंक्शन होता है ना कि जो भी बैक्टीरिया उसको रिमूव करता रहता है हमारे मुंह से. गूगल खोल के बैठ जाना. नहीं, I'm actually genuinely interested. चले नहीं, हमारा breathing rate कम नहीं होता. नहीं, I'm genuinely interested. I because I'm wondering कि हाँ, like everything you're saying is making more sense. क्योंकि रात को आप 6 hours के लिए, minimum 6 hours के लिए कुछ भी नहीं खा रहे. आपके दांत clean है. ठीक है, और आपकी मुंह में सेलिवेशन नहीं है, तो आपकी बैक्टीरिया का भी एक्शन जो है वो रुक जाता है. ठीक है, सारी चीज़ें हो गई. अगर आप सुबह ये चीज़ करते हो, सुबह आपने 1 घंटे के लिए किया, आपके दांत आधे घंटे के लिए साफ हुए, क्योंकि तुमने ब्रश किया, तुम टेबल पे गई, नाश्ता शुरू कर दिया तुमने. तो हमारे दांत जो मेजर एक्शन होता है ना, अगर तुम रात को अपने दांतों में खाना रख के सो जाओगे और सेलिवेशन कम होगी, बैक्टीरिया का एक्शन ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि स्वीप अवे नहीं ना हो रहा सेलिवेशन के साथ, तो बैक्टीरिया का एक्शन ज़्यादा हो जाएगा. तुम्हारे मतलब किसी की भी कैविटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी. बैड ब्रेथ इसी वजह से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 24 आवर्स में पक्का होना स्टार्ट कर देता है. एक जगह पे अगर एक चीज़ पड़ी रहती है, खाना it's really important बेड टाइम ब्रशिंग, जो नाइट टाइम ब्रशिंग है वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. Would you say it's more important than morning brushing?
अगर आप मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करोगे ना, फिर आपने उठ के नहीं करना, ठीक है, आपने फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ब्रेक देनी है 2 to 3 hours की. See, a lot of people have breakfast and then they go wash their face, like wash their, like they don't do anything. They don't do anything. I know a bunch of people who do this. What they do is they wake up नाश्ते के बाद and फिर instead of going to the washroom first, they just go out, they have their breakfast, they don't even wash their face, they don't do anything, they eat and then they come back and then take a shower and brush their teeth. हाँ ब्रशिंग तो ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद करनी है अगर आप रात को करके सोए हो. Yeah. अगर आप रात को करके सोए हो तो सुबह तो आपका कोई पॉइंट ही नहीं है ना ब्रश करने का. लेकिन अगर आप रात को नहीं किया तो फिर सुबह उठो, पहले ब्रश करो. ऑब्वियसली आप गंदे दांतों में थोड़ी रात का खाना फंसा बोटी फंसी वही मुंह में आ रही हो. पता चले अम्मी मैं तो अंडा खा रहा था, बोटी भी डाली थी अंडे में, पता चले रात की आ रही हो वो. No, acha, there's this guy called Terry Crew. Do you know अच्छा, नहीं, मुझे Terry नहीं पता. Crew? Ali, is it Terry Crew? Terry Crews. Terry Crew. The Crews? No. That Tom Cruise ko Terry Crews ko mix kar rahe ho tum. I think Terry Crew. Hold on. The bodybuilder, yeah. The black gentleman, Terry Crews. अच्छा. Sahi hai. Terry Crews. This guy, I was watching one of his interviews and he's like, yeah, I don't, because he wakes up at 4 in the morning. So yeah, that's his routine. He wakes up at 4 in the morning. As soon as he wakes up, he gets out of bed, drinks a glass of water, goes to the gym, which is in his house. He goes to the gym. He works out for about like hour and a half, however long, and then he comes back and takes a shower and washes his face and washes his mouth. Like he says, I hate waking up and just doing the brush. I like to get all, like I want to drain all the sweat out of my body right, like the first thing in the morning, and then I would go in and clean up. He's like, because it's counterproductive. Like you go wash your face and then you go work out and then you have to go take a shower. लेकिन वैसे मैंने सुना है कि खाने के बाद तो आप वैसे शावर नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जब पानी गिरता है ना तो आपकी बॉडी हीट इवेपोरेट होती है, तो आपका बॉडी जो है ना वो ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, फिर आपकी बॉडी के फंक्शन फिर से कम हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है. You have to be louder. Like क्योंकि आपकी डाइजेशन फिर से स्लो हो जाती है. Literally, this is अच्छा the वाकई? sound. हाँ. You have to be louder. तुम्हारी बहुत weak आ रही है आवाज. Like throughout the podcast, like हाँ नहीं. if you can't hear her, it's not me, it's her. She's talking इसने extremely मेरे slow. कानों में मेरी आवाज लगा दी वो है. निकाल दो ना तुम. वो निकाल दो क्योंकि आ ही नहीं रही. अब आ रही है सही. अच्छा, अब खुल के तो बोलो. हाँ. होता ये है बेसिकली, मैंने ये सुना हुआ है कि आप जब खाना खाने के बाद नहाने चले जाते हो ना तो आपका, क्योंकि वाटर से ना आपकी बॉडी में से हीट इवेपोरेट होती है, आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है. मतलब लो नहीं, मतलब नॉर्मल की तरफ, क्योंकि आपकी बॉडी ऑपोजिट वो कर रही होती है. तो जब वो कम होता है तो फिर आपकी बॉडी फंक्शन फिर से कम हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर आपकी डाइजेशन कम होती है. मतलब देर से होती है. हाँ, आपकी बॉडी के जो सारे मेटाबॉलिज्म्स वगैरह हैं वो स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से. No, so what does digestion have to do with body heat? क्योंकि आपकी बॉडी में से बॉडी आपकी फंक्शन स्लो हो जाते हैं ना, बॉडी हीट आपकी कम हो रही है, मतलब निकल रही है आपकी बॉडी में से हीट. So what does heat have to do with? तो क्योंकि हाँ, तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ना, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है. स्लो हो रही है, आपके फंक्शंस कम हो रहे हैं. यार ये पढ़ लो ना, इतना बड़ा खोल के बैठे हुए. कि क्यों होता है मुझे क्या पता अब. नहीं ठीक है, होगा ऐसे. हाँ, Like what do you think about okay, do you know this thing called itis? Itis नहीं. हाँ. What is itis? Iris तो ये Iris नहीं, itis. Iris I don't know. Okay. Itis is if I'm not wrong. Hold on. हाँ, अपनी बारी एप्पल खोल लेता है. If I am not wrong, मेरे से सारे क्योंकि ऐसे मुझे वो खटाखट सवाल. exactly उसका term नहीं ना पता. Itis. I think that's what it is. But anyways, if you don't know what itis is, and basically when you eat a lot of food, do you feel sleepy? Are you one of those people who eat a lot of food and instantly fall asleep? मतलब like feel lot sleepy? नहीं, मतलब बस पेट भर के खा लिया तो बस थोड़ी नींद आना शुरू हो जाती है. हाँ. अच्छा, with me I have extreme case of itis. अच्छा? Like if I eat a lot of food, I instantly start feeling sleepy. Like my systems start to shut down. Like a lot of people, you know, why do we have like पाकिस्तान के अंदर तो ट्रेंड है ना, इवनिंग नैप्स, आफ्टरनून नैप्स, खाने के बाद सो जाना, सोफे पे सो गए, अफ्तारी के बाद सो गए जहाँ बैठे हुए हैं. Why is that? It's itis. It's because literally when you eat a lot of carbohydrates,
So this is how it works. We were like back in the days, like the humankind, we were hunter-gatherer people. So ये हम लोग क्या अच्छा। करते थे? हम लोग जिस तरह हमारा system built था, like growing up in the plains of Africa, where we had to kill an animal and eat that animal instantly. And then as soon as your stomach is full, your body instantly goes to resting phase, so it can conserve that food for a longer period of time. So you don't waste energy. That's what actually a lot of mammals do in the wild. For example, शेर खाना खाने के बाद फौरन सो जाता है. शेर एक्चुअली 22 घंटे सोता है 24 घंटों में से, ताकि वो जाग के अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे. चलता रहेगा, क्यों उसने, हाँ, वो वेस्ट करेगा अपनी एनर्जी. Food is scarce. There's less food. There's less water. Why would he walk? And the cats can't even sweat out, so they drool from the mouth, like they sweat from their tongue. अच्छा. Basically. उर्दू पे आ जाते हैं थोड़ी. Okay. अच्छा. They sweat from their tongue. उनको उनकी ज़बान पे पसीना. Have you ever wondered कि dogs जो हैं उनकी थूक क्यों लटकती है? क्योंकि dogs sweat नहीं कर सकते. तो body heat को मेंटेन करने के लिए वो अपनी स्वेट करते हैं टंग से. और जिन लोगों को नहीं पता, इंसान स्वेट इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी जब बॉडी बहुत गर्म हो जाती है तो आप स्वेट करते हो ताकि आपकी बॉडी हीट कंट्रोल हो सके, वरना आप मर जाओगे. सीधी सी जो बात है. बट एनीवेज, पॉइंट इज के हम लोग हंटर गैदरर्स थे, तो हम लोग का माइंड अभी भी वही है. अच्छा. सो आवर ब्रेन डजंट अलाउ अस टू स्टे अप. सही है. और ये मुझे एनालॉजी एक्चुअली शाम ने बताई थी. And Sham was explaining this to me once, and he was like, when you eat a lot of food, you want to feel sleepy, especially carbohydrates, क्योंकि the first thing we burn in our body is carbohydrates. सही है. आप जो रोटी नान आप ज़्यादा खा लोगे ना, उसके अंदर carbs बहुत होती हैं, तो आपको फौरन नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि carbs आप बर्न कर रहे हो. सबसे पहले आपका सिस्टम ट्रेन हुआ है कि वो कार्ब सबसे पहले बर्न कर रहा है, तो आप कहोगे सो जाओ. हाँ. ज्यादा खाना खा लिया, शाबिर सो जा. दिमाग कहेगा शाबिर सो जा. वो नींद आना शुरू हो जाएगी एकदम सिस्टम को कि अच्छा अब खाना खा लिया, अब बचाओ इस एनर्जी को. ताकि तुम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं पता थी बात कि हम लोग एनर्जी सस्टेन कर सको. मुझे याद है मैं अपने एग्जाम्स के बीच में मैं लंच में सिर्फ एक वो था 1 बाइट पैटीज नहीं होते छोटे छोटे, मैं 2 वो खाती थी और 1 माइलो पीती थी. सिर्फ ये, क्योंकि मुझे होता था जहाँ मेरा पेट भर गया वहाँ पे बस मैंने अंदर लाइब्रेरी में जाके सो जाना है. और मैं होती थी, मैं बस नीचे जाती थी, मैंने वो 1 बाइट पैटीज खाए 2, और कभी बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 3 खा लिए, लेकिन पेट नहीं भरना. बस वो 2-3 पैटीज खाए, माइलो पिया, और बस ये मेरा लंच होता था प्रॉपर. कि बस इसके बाद फिर मैं 7-8 बजे तक कुछ नहीं खाती थी कि मेरा लंच हो गया. क्योंकि अब वही बात है ना, आप जिस तरह अपने दिमाग को ट्रेन कर लो वो होता जाता है. तो मुझे ये लगता है कि मैं इस चीज़ पर ट्रेन नहीं कर सकती थी कि हाँ मैं सोऊंगी नहीं, मुझे पता था मैं सोऊंगी, तो मैं अपना पेट ही नहीं पूरा भरती थी. फिर मुझे एक याद है बात कि मैं एसी में नहीं पढ़ती थी, मैं गर्मी में पढ़ती थी. क्योंकि एसी में माहौल बन जाता है ना, वैसे थोड़ा सा वैसे थोड़ा सा नीचे होते हो, फिर ऐसे होते हो, फिर बुक ऊपर आती है, फिर बुक साइड पे जाती है, फिर माहौल बन जाता है. फिर जब मैं घर में पढ़ती थी मैं एसी में नहीं पढ़ती थी, और लाइब्रेरी में मैं एसी बंद कर देती थी बार बार जा के. वो बेचारे आ जाते थे मुझसे कि हमारा क्या कसूर है भाई, हमें नहीं नींद आती एसी में गर्मी में. तो मैं फिर ये करती थी. That's exactly like that's itis. ज़्यादा खाना खा लिया फौरन नींद आ गई. Exactly इसी तरह होता था. लेकिन क्या खा के आए हो? अंडा. तुमने ये जो 1 सेकंड में खाया वो अंडा था? अंडा था. किस चीज़ के साथ? Hungry. I just had breakfast. 4 बजने वाले. 4 बजे. तौबा. अच्छा तुम क्या पढ़ी थी? एक स्टोरी पढ़ी थी तुम अभी. हाँ. What happened? यार बच्ची फंस गई एक. सोचो कहाँ? सोचो बस सोचो. मुझे पता है. तुम बस सोचो. काइट में बच्ची. How can you like what happened? 3 साल की यार बेचारी. How is that funny? हंस क्यों? बच्ची फंस गई मेरे सामने, बच्ची उड़ रही है, मुझे तो हंसी आया यार. मतलब इसमें बदतमीजी वाली बात तो नहीं है. मेरे दोस्त ने मुझे एक दफा कहा था बच्ची फंस गई. हाँ. यार ये गलत बात है. अच्छा अली ने कहा था मुझे. अली ने कहा था 3-year-old girl. शाबी भाई बच्ची फंस गई काइट में. A 3-year-old girl in Taiwan was caught up in the strings of a kite and lifted high into the air before being rescued unharmed. How is that possible? और ऊपर ले गए. वो थोड़ी सी फंसी ना, उसको और उड़ा लिया उन्होंने. लेकिन how can a बच्ची be stuck in a how big was the kite? यार काफी बड़ी kite थी. The unidentified girl was taking part in a kite festival on Sunday near when she became entangled in a giant long-tailed orange kite
and was hoisted off the ground by several meters. Okay. She has been reported safe following the terrifying incident. यार मैं देख लेते ना, मुझे लगता है इनकी बहुत जाइंट किस्म की वो काइट फेस्टिवल नहीं होता. बसंत. नहीं नहीं बसंत, हाँ हम लोग उसको बसंत, लेकिन इनका एक होता है बहुत बड़ी बड़ी काइट्स उड़ती हैं यार. उनकी डोर भी मोटी वाली होती बड़ी है. वाली होती है. उसमें बच्ची मुझे लगता है वो पकड़ के खड़ी होगी, किसी ने कर दिया होगा. मतलब यार मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन तुम्हें विजन आ रहे हैं. Entangled in the kite, which means that मैं she was देखती हूँ. like she was tied up. नहीं the नहीं door. देखो पिक्चर में तो वो बच्ची ने डोर पकड़ी हुई यार है वो पिक्चर सिर्फ. फेक होगी ना. हाँ नहीं पिक्चर वही है. क्योंकि हर जगह वही पिक्चर क्यों लग रही है फिर. अच्छा, she's holding the rope हाँ like बस वो this and फंसी हुई she's है just ना, flying. वो बस फंसी हुई है देखो पकड़ के. Oh. और ये डोर नहीं है. Okay, ये partner, देखो this is clearly fake. The one on the आप- right is clearly fake because it literally shows. Oh no. क्योंकि वो काइट नहीं है ना, वो बकायदा बड़ी वाली वो है. Oh. Okay, interesting. You know what this reminds me of? What? So there's this magician. His name is David Blaine. You know अच्छा. him? हाँ शायद. David Blaine, you right? शायद. So David Blaine is a magician. The magician is the David Blaine. And he does magic. And he's a magician. Okay, moving on. Pagal. उसका एक YouTube original पे show आ रहा है. It's called Ascension. सही है. What he's trying to do in this show is he basically is taking about I don't know how many balloons, but he puts hydrogen in them. Now hydrogen obviously floats, right? तो बड़े बड़े balloons लेके उसके अंदर hydrogen डाल रहा है, and he's gonna hold on to the रस्सी of these और उड़ balloons, जाएगा. and he's just gonna try to fly off as high as he can. And he says, and that it's going to be live on YouTube. अच्छा. Huh. But what he's trying to do is he's trying to go as high as the Mount Everest, which is roughly about 25,000 feet, अच्छा. which is unbelievable. ओ तेरी. Because at those heights, you can black out like this. क्योंकि हाँ. oxygen नहीं ना होता नहीं है ऊपर. बिल्कुल. हाँ. सही है. So you can black out like this. And if you हाँ. black out is so dangerous, like that territory is extremely dangerous. That height is dangerous because if you black out, वहाँ and तो आप गुम भी वहाँ मतलब आप गुम ही जाते हो ना, मतलब आपको वहाँ रेस्क्यू के लिए भी कोई नहीं आ सकता. हाँ नहीं आसमान में लोग बैठे हुए हैं ना बचाने के लिए. नहीं मतलब अगर आपको हेलीकॉप्टर्स वगैरह, अगर आपको helicopters आपके लिए can't हेल्प fly at वगैरह that भी height. भेजें, मैं वही कह रही हूँ कि Yeah. आपके वहाँ पे आपको रेस्क्यू के लिए भी कोई नहीं आ सकता. मैं ये कह नहीं रही आ हूँ. सकता. नहीं आ सकता. मेरी माली में चीनी है इसमें. अच्छा, थैंक यू. So yeah, ठीक ही है ना. बस ठीक है, ऐसी चाहिए. point is के हाँ. it's unbelievable what this guy is trying to do. Like if you actually follow his life, all of his life he has done crazy shit. So for example, I was watching this Joe Rogan podcast with David Blaine. So yeah, and he was just saying how he held his breath for over 15 minutes ओ तेरी. underwater. He went underwater, हाँ. one breath, 15 minutes. Unbelievable. The record holders before him, there was another magician about like I guess like tens of years ago, and that guy held his breath for 4 minutes. बस खाली 4 इससे मिनट. 15 मिनट से पहले का रिकॉर्ड 4 मिनट्स का 4 minutes का था apparently. किसी magician का. है. सही है. लेकिन what he basically works on these breathing techniques that he was like, there's like his show is literally on YouTube where he does this breathing technique with these people, and what he does is कि वो लोगों को कहता है अच्छा आप अपनी breath hold करें, and these runners with like great stamina and all, like there's this YouTuber called Casey Neistat, and Casey holds his breath for like a minute and 50 seconds. सही है, without practice, and then he gives like 20 minutes of practice to Casey Neistat, and then he makes him hold his breath again 4.5 minutes. ओ तेरी. It's just like his weird Oof. breathing technique. He's just going like he has लेकिन like a उसको breathing ज़्यादा technique. ब्रीदिंग का ही है. He's Yeah, like हर चीज़. all of what he does, like especially with like different. with holding his breath, has to do with breathing. क्योंकि मुझे कहता लगता है मैं वो ऊपर अपना जाके भी अपना ब्रीदिंग का ही कोई टेस्ट करने जा रहा है. he basically is gonna hold his breath. I'm pretty sure he's gonna hold his breath उफ तौबा. up there. पता है लोग कैसे क्योंकि कैसे वो ऑक्सीजन लेवल जो है ना, जो अमीना लगाती है ना यहाँ पे ऑक्सीमीटर, हाँ. सही है,
तो all of these mountaineers and all of these guys who go at like certain heights, they take those with them. जब आपकी blood के अंदर से oxygen level कम होना शुरू हो जाता है ना, तो आपको नजर आ रहा होता है कि मैं मरने के करीब ऐसा लग रहा है जैसे कि मौत सी आ रही है जैसे. तो अगर 60-70% के बीच में हो ना, तो most probably आप थोड़ा यानी कि आप ऑफ होना शुरू हो जाते हो, एंड इफ इट गोज बिलो दैट यू कैन ब्लैक आउट. सही है. तो ही डज दीज ब्रीदिंग टेक्निक्स एट दोज हाइट्स एंड ही इज मेंटेनिंग his oxygen level in his blood by just the breathing technique he does, which is crazy. He once froze himself into ice for 55 hours. क्या ये कौन है? मैं देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे. You don't know David? How do you not know David Blaine? क्या पता, मैंने शक्ल देखी हुई लेकिन मैं उसको इतना फॉलो नहीं करती. ये देखो, David Blaine. Who to blame? Blame. This guy. Look, this guy. ये तो मैंने देखा. हाँ, exactly. This is the guy. ये देखा हुआ, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करती. हाँ. ये उड़ गया. ये तो इसने बना भी दी balloons. Yeah, he's working on it, no? So, I was listening, man. It's like these kind of people fascinate me because it's just not like okay, balloons फुलाए उड़ गया, ठीक है? कोई प्लान नहीं था, कुछ सोचा हुआ नहीं था, कोई टेक्निक नहीं थी. First he needs, not even that. There are legal issues. He needs to complete 500 parachute jumps, like jumping from the plane before he gets his license for hot air balloon. Oh, तेरी. So he's jumping out of the plane. He's jumping out of the plane 15 times a day these days. बेचारा कह रहा है that's all I'm doing. कहता मैं नीचे आता हूँ फिर ऊपर चला जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ फिर ऊपर चला जाता हूँ, कोई मकसद ही अपना जो मकसद था वही चेंज हुआ. Yeah, because he needs to be comfortable with that. Because when he goes to 25,000 square feet, by the way, dude, that's the height जहाँ पे planes उड़ते हैं. Like जब आपका plane, जब international flight होती है ना, जब कनाडा से मैं पाकिस्तान आ रहा होता तो मैं 25 to 30,000 feet पे उड़ के आ रहा हूँ. जहाज में बैठे एक बंदा आ रहा है, जहाज पे नीचे से बलून से एक बंदा आ रहा हूँ और अभी भी ऊपर जा रहा है. सोचो. So that is serious height. So in order for him to jump off of that height, he needs some serious training. और उसके लिए he is jumping out of the plane 15 times a day. लेकिन ये करता सब कुछ अकेला ही है, प्रॉपर टीम और सारी चीजें. Proper team यार. He has like the best of the best working for him. Nice. अच्छा, तो तुम्हें काइट उड़ानी आती है? मुझे काइट से याद आया. आती है? झूठे? कसम से तुम्हें नहीं आती? नहीं. मुझे बस वो कन्नी देने के लिए रखा होता था. चेपियां लगाने के लिए. हाँ, मैं चेपियां भी लगाती थी. और लेकिन मैं, क्योंकि मैं काइट तो उड़ाती नहीं थी, लेकिन मैं टेपे पहन लेती थी कि यू नेवर नो, कि मतलब मैं किसी को डोर पकड़ा रही हूँ और मुझे कटना लग जाए. तो ऐसे बहुत फील आती थी बचपन में. मुझे याद है एक वो ब्राउन वाली होती थी टेप, उसका वो चेपी बोलते थे, मेरा ख्याल है उसको. उसको काइट को पकड़ के ऐसे भी करते थे. स्ट्रेच. हाँ, काइट को पकड़ के यूं सर पे करते थे. उसको पता नहीं क्या बैलेंस करने के लिए क्या, लेकिन बड़े प्रोफेशनल्स होते थे यार. वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते थे काइट्स के साथ. मैं कहता था यार आप ही उड़ा ले, हम तो देख ही सकते हैं. यानी कि मुझे ये तो नहीं पता था ये भी करना होता है, टेढ़ा भी करना होता है. मुझे याद है कि हम बहुत एक्साइटेड होते थे, मैं और सईदा, ये करने के लिए कि ओ अच्छा मेरी बात, मुझे बुलाया, मतलब देखो इससे काइट नहीं उड़नी थी अगर मैं ये ना करती. समझ रहे हो? तो बड़ा ऐसा लगता था कि ओ अच्छा मैं जा रही हूँ, जरा उसको वो कन्नी देने. कन्नी होती थी ना उसको, ऐसे करके कन्नी देते थे, फुल उछल जाते थे ऊपर. फिर सब कहते थे वो नहीं, सुंदर बड़ी अच्छी कन्नी देती है. Good old days. Coming back to Karachi, I know we like spoke about this. यार कराची का काफी बैड सीन हुआ है आजकल. We spoke about this a little bit in the last podcast, but like I really want to get into detail because now we have all the facts and figures, and I have friends in Karachi. मैं ये इनके घर गया था ना, ये Voice Over Man के. I did an interview with him, by the way. Do not watch it if you're under the age of 18. I was actually surprised. Like, you know, his first question just blew me away. तुम full pink होके बस तुम ये थे कि dude, I wasn't expecting, like I knew इतना direct नहीं. मुझे था कि यार I was expecting कि अच्छा at some point, you know, he's gonna say some weird things, मार दिया, you know, कोई indirectly कुछ पूछ लिया. But dude, when he literally started off with the bang. You know, he's like, okay, so you have, I don't know if I can say it or no, but like नहीं ना, मुझे नहीं लगता. अगर उसको तुम सेंसर नहीं करना चाहते तो. Okay, I'm gonna say it, I'm gonna censor it. Okay, censor this part, like the word. Okay, he's like, so
so I heard that मैंने सुना है शाबिर आपके घर में 15-20 लोग रहते हैं आपकी टीम में. मैंने कहा जी. तो कहता कि shit I can't even think of the word. Hold on, wait. वो क्या होता है वो जिसमें बहुत सारे लोग वो हाँ okay. अच्छा I'll start again, okay? So he's like मैंने सुना शाबिर आपके घर में आपकी पूरी टीम रहती है. मैंने कहा जी. कहते 15-20 लोग तो होंगे. मैंने कहा जी. तो आप मुझे अपनी कब बुला रहे हैं? So that was his first question. I was so surprised because that was his first question. I was like, I can only imagine what the rest of the show is gonna be like. Please, Acha. By the way, you know, like Dinky was there. साता? Everybody, yes, everybody was there, and I just became red because I was like, shit. I wasn't like मुझे लगा था एक दो होंगे इस तरह के और वो भी indirect ना कि मतलब अच्छा इस तरह है. Like I wasn't expecting, but it was like the man is awesome. I love the guy. अच्छा खैर तो फिर तुम कराची कब था? So yeah, I went to his house. Basically मैं बताने की कोशिश किया था. I went to his house and वहाँ पे जो था in the basement, show जो है उनके basement में होता है, and they have like a really good music system. Studio बनाया हुआ पूरा. So we like even after the show we stayed behind and we just looked at these things, and Mohsen bhai and Hamza bhai, they're big into music, so we were just playing music and all, everything, like we were doing everything. तो अभी वो मुझे आशिर ने तस्वीर भेजी है, like he posted it on Instagram. उसने अपने Insta पे भी share किया. Where they're moving their entire studio because their basement started to flood with all the water. And that kind of just shows you the perspective. And by the way, that area is a really high profile area. DHA का phase 6 area है वो. The high profile area, one of the nicest areas in Karachi where you wouldn't expect something like this to happen. और ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे जो पानी है. I know a lot of people are complaining कि 3-4 दिन से बिजली नहीं आ रही. Even Ashir and them, they're complaining 3-4 दिन से बिजली नहीं आ रही. तो I realize कि अगर बिजली वो on करेंगे because there's like the entire city is flooded, उसके ऊपर करंट वरंट आ सकता है. लोग जो हैं. So I understand why people are complaining about the बिजली, but there's a very solid reason, believe me, why they're not releasing electricity right now in the houses. क्योंकि कुछ भी हो सकता है. कोई नंगी तार खुदा न खास्ता पानी में आए, लिटरली पूरे के पूरे नेबरहुड्स डैमेज हो सकते हैं. काम शुरू हुआ है, पानी बहुत जगहों से निकाल लिया इन्होंने, लेकिन बस DHA में ही अभी इतना रहता है. बहुत लोग अपने बहुत बड़े बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह लिख रहे हैं कि हमने इतनी खुद सारी एफर्ट्स करके हमने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया था कि हम लोग अफोर्ड कर सकें महंगी जगह पे पोश एरिया में रहना. इसलिए नहीं था कि हम लोग एंड में आके अपनी चीज़ें छतों पे रख रहे हों या कहीं और संभाल के रख रहे हों कि हमारे स्टूडियोज लोगों के ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि यू लिव इन अ हाई प्रोफाइल एरिया और आपने मेहनत करके पैसे कमा के वो जगह खरीदी है. यू लिव इन अ हाई प्रोफाइल एरिया, आपने मेहनत करके पैसे कमा के वो जगह खरीदी है और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हो कि आपका घर फ्लड होना शुरू हो गया. आप मतलब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो ना कि यार मतलब इतनी, फिर वो बात है ना कि लोग ब्लेम ही करते रह जाते हैं और बात खत्म हो जाती है. अच्छा द सैडेस्ट पार्ट इज कि खाली सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम्स चल रही हैं. सिर्फ ब्लेम गेम्स और कोई ब्लेम ले नहीं रहा कि हाँ जी अभी आजकल की गवर्नमेंट को कह दो तो हाँ जी वो पुराने जो थे उन्होंने कोई चीज़ नहीं की थी तो हम लोग क्या कर सकते थे. हाँ जी वो लोग इतना ख़राब करके चले गए थे तो हम लोग क्या करें. पुरानों से पूछो. लेकिन obviously technically speaking you cannot blame the federal government for this. Like people who know what's going on, they know not who to blame and who not to blame. And without saying any names, everybody knows who is responsible for these things. So yeah. But anyways, like point is कि यार Karachi is in like a really bad shape right now and something solid needs to happen over there. Literally like ऐसा plan बना चाहिए. expected है rain कराची में. I know. I saw. अभी जो thunderstorm लाहौर के अंदर भी, by the way, yesterday and day before yesterday there was like a storm, right? And that storm is moving towards Karachi. मैंने सुना है कि कराची जो है below sea level है. Yeah. तो अगर सी में अगर 1 इंच भी पानी ज़्यादा हो जाता है, अब पता नहीं, ये तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होंगी, मुझे मैं इतनी डिटेल्स में तुम्हें पता है जाती नहीं हूँ. अगर सी लेवल में से 1 इंच भी अगर पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो कराची में प्रॉपर फ्लड्स वाला सीन शुरू हो सकता है. लाइक प्रॉपर सीरियस फ्लड्स. इट्स जस्ट बिकॉज कि वो कराची जो around the world, everywhere. I understand that. I heard that from somewhere as well. मैंने खुद पर्सनली रिसर्च नहीं किया तो मैं कमेंट नहीं दूंगा इस पे, लेकिन everywhere else around the world
what I see is happening, especially जो cities होती हैं ना जो कि ocean के पास होती हाँ हैं, हाँ 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 close to the sea and all, they are taking proper measures जो कि flood prevention measures होती हैं, tsunami prevention measures होती हैं. So ये अभी जो recent tsunamis आए हैं हर जगह पे, just look at a lot of countries जहाँ पे भी Japan के अंदर आया है, and I can't remember like some other countries. They take preventions, they're building walls that are high enough कि खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है जो कि unexpected है, तो आपकी पूरी सिटी जो है वो डूब सकती है. एंड कराची इज़ अ कोस्टल सिटी, तो वहाँ उस पे जो डैमेज होगा, एंड कराची फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इज़ योर इकोनॉमिक हब ऑफ द कंट्री. If Karachi drowns, the whole country drowns with it, like it or not. That's just how it works. So taking solid measures to make sure that your economic hub is reliable in terms of geography, कि आप उसको किसी तरह सस्टेन कर सको, खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो आप उसको प्रिवेंट कर सको किसी तरीके से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कराची में जितने लोग रहते हैं, खुदा ना खास्ता the amount of people that are going to get erased with these natural disasters, खुदा ना खास्ता अगर कोई सुनामी आ जाता है, and it's not unlikely that it will happen, it's very likely that it will happen in the next 50 years. So they have to look at the future. The governments have to look at the future and make systems and make sure the city is secure from the coastal line, the coastal belt. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मैंने BBC पे पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से हरिकेन्स और जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं ना, फ्लड्स वगैरह, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है. और जो ये हरिकेन्स वगैरह होते हैं ना, ये मॉइस्ट एयर से वो करते हैं, अपनी सारी एनर्जी इनकी बिल्ट होती है, तो जितनी ज़्यादा वो होती है, और पानी ज़ाहिर है वो उसमें होता ही पानी ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें जो है वो सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत, मैंने सुना है अभी और स्ट्रॉन्ग होंगी. कि अभी हरिकेन्स वगैरह इस दफ़ा जो आ रहे हैं, जो सारे सैलाब, फ्लड्स वगैरह, सारी चीज़ें, जितने भी तूफ़ान, सारे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ये बहुत पिछली दफ़ा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. Because entire पूरा जो उसका सिस्टम है अफेक्ट हो रहा है, पूरी दुनिया का सिस्टम अफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट हैपेंस सिर्फ एक का नहीं हो रहा ना. टू द पीपल हु डोंट नो व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज, बेसिकली गर्मी दुनिया के अंदर बढ़ रही है. उससे हो क्या रहा है कि आपके जो आर्कटिक आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, वो मेल्ट होके ग्लेशियर्स के अंदर आ रही हैं, वो पानी जो है ओशंस के अंदर जा रहा है, ओशंस का वाटर लेवल राइज हो रहा है. जैसे जैसे ओशंस का वाटर लेवल राइज हो रहा है, तो सिटीज़ जो हैं वो नीचे जा रही हैं ओशन से. तो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं दुनिया में, हर जगह पे समंदरों के बीच में, वो आइलैंड्स विद इन द नेक्स्ट 10 years एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर लेवल इतना आहिस्ता आहिस्ता हाई हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा कि वो सारे ऊपर चल जाएंगे. और सिटीज़ लाइक पाकिस्तान इज, कोई रिपोर्ट आई थी, इवन प्राइम इमरान खान स्पोक अबाउट दिस, कि पाकिस्तान इज one country in the top 10 countries that is the most affected by global warming, and that's why Pakistan, and that's why it is so important to pay attention to the initiative of planting trees and all of this, because it is actually a threat to Pakistan more than anywhere else in the world. Like, we're literally in the top 10 where Pakistan is going to get destroyed first अगर दुनिया और गर्म होना शुरू हो जाती है. जब गए थे ना नॉर्दर्न एरियाज में, हमें जो ड्राइवर अंकल थे ना हमारे, उन्होंने हमें बताया था कि ये दरख्त यहाँ पे पहले नहीं थे. एक पूरा एरिया था जिस पे दरख्त, मतलब ज़ाहिर है माउंटेन्स में ग्रीनरी तो होती है. उस बंदे ने हमें कहा था ये पहाड़ खाली होते थे, ये सारे पहाड़ जो भरे हैं दरख्तों से, ये इमरान खान के आने के बाद भरे हैं. तो मतलब इमरान खान ने लगवाए. और हम थे कि आपको पता है कि ये इमरान खान ने, कहते हैं हाँ ये क्योंकि हमें पता है ये इमरान खान ने लगवाए, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है आपके एरिया में कौन काम कर रहा है आपको पता होता है, और दूसरा ये कि वो उसने हमने कहा कि मतलब इतने ज़्यादा किस तरह लग सकते हैं. उसने कहा ये इसने उसके आने के बाद लगवाएंगे सारे दरख्त, इमरान खान ने लगवाएंगे सारे. Yeah, that's such a beautiful initiative. अभी एक इसी तरह एक यूट्यूबर था मिस्टर बीस्ट, उसने एक कोई कैंपेन शुरू हुई हुई थी, planting 20 million trees, and if you donate $1, you donate for one tree to be planted anywhere in the world. So yes, so there's this there's this, I don't know, NGO, non-profit organization, जो भी है, non-governmental, हाँ, NGO जो है वो थे और वो plant कर रहे थे, and literally $20 million got donated like this. सही है. And I feel like that's such a good initiative,
and maybe this is like one of my future videos where I'll grab a bunch of people, like I'll announce it that I need volunteers, and I'll just pick like close to like 1,000 people, and we'll go in an empty area with the government's permission and stuff, and jahan pe bhi zarurat hai wahan pe we'll plant trees, because Lekin, that tree will live past you, like it or not, and that's, you're just leaving a form of a legacy behind yourself. Okay, you can always look at that and you can always go like, and plus like my love for plantation and all, like you can see them everywhere, like they're all over my house. I मुझे just पता नहीं love क्यों पाकिस्तान greenery. में ये लगता है कि मैं अगर तुम्हें ना जानती होती, तुम अगर एक सेलिब्रिटी होते, मतलब जो कि तुम हो, लेकिन नहीं, अगर Take it जो back. कि तुम हो, जो कि Take it तुम back. हो, Take it back. अगर मैं तुम्हें कभी टीवी पे देख रही होती एक कि second, मैं अभी इसका माइक बंद करता हूँ. तुम सेलिब्रिटी नहीं हो ना, हाँ? अगर तुम सेलिब्रिटी होते, मैं कह रही हूँ, अगर तुम सेलिब्रिटी होते जो कि तुम हो, तो अगर मैं तुम्हें टीवी पे देख रही होती हाँ. और तुम कह रहे होते कि मैंने जी ट्रीज प्लांट करने हैं और ये करना है, तो जी आप डोनेट करें, वन रुपी भी डोनेट करते हैं, 2 रुपीज़ भी डोनेट करते हैं, मैं कभी भी ना करती. नहीं देखो, अगर यार तुम, क्योंकि पाकिस्तान में इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं पार्टनर, इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं. लेकिन इसीलिए तो कि like I've आपको never बस- asked for donation. मैं तुम्हारी personally बात नहीं speaking. कर रही, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही कि बाहर लोगों ने डोनेट इस तरह इसीलिए कर दिए क्योंकि बाहर अगर लोग मांगते हैं, वो लगाते हैं, वो दिखाते हैं, समझ You रहे हो have to build trust. यार. मुझे You नहीं have to लगता build कि trust. हम लोग For इतने example- ज़्यादा हम लोगों को बिट्रे कर दिया पाकिस्तान के कि जो मांगते हैं पैसे, जो पता नहीं, मुझे ये बात अब यहाँ पे कहनी चाहिए कि नहीं, कि तुम ये देखो कि लॉकडाउन जब हुआ है तो हमें जी ये था कि बहुत सारे लोकल बिजनेसेस हैं जो बंद हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया. मैं बस 5 मिनट में निकल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हो गई. इमरान खान आया है, आके जी बैठा है कि अच्छा हाँ जी मैं डोनेशन मांगने आया हूँ, और इमरान खान के नाम पे लोगों ने ऐसे पैसे दिए ना कि मतलब हाँ आप इतने अच्छे कॉज के लिए आए हैं. Yeah. अगले दिन सारे पैसे जमा हो गए, अगले दिन वो लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया कि हाँ जी बस अब खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ. तो वो पैसे कहाँ गए, किधर गए? समझ रहे हो कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि शावीर, See, I haven't मेरे looked into लोकल something like बिजनेसेस this. बंद हो गए हैं, मेरी दुकानें बंद हो गई हैं, तो लोगों से पैसे मुझे डोनेशंस चाहिए. मैं लोगों से बहुत सारे पैसे जमा कर दूँ कि जिन लोगों के काम बंद है मैं उनको जा के डिलीवर करूँ, मैं सारी चीज़ें करूँ. मैं पैसे बहुत सारे जमा कर लूँ और अगले दिन मैं कहूँ नहीं भी दुकानें खोल लो, लोग आएंगे, पैसे, तुम लोग का बिजनेस शुरू हो गया दोबारा से, अब तो कोई बिजनेस बंद वो नहीं है कहीं ना. किसी ना किसी गवर्नमेंट रिजर्व के अंदर गए होंगे ना पैसे, where they कहीं eventually गए, help. कितनों को मिले होंगे, लोगों को शायद हाँ. मिले होंगे, शायद नहीं भी मिले होंगे. लेकिन मैं अगर इस तरह एक नॉर्मल इंसान की तरफ, नॉर्मल सिटीजन की तरह देखूं, तो मैं ये देख रही हूँ ना कि गवर्नमेंट ने पैसे जमा किए कि लोकल बिजनेसेस बंद हैं और आगे जाके पता नहीं कब खुलेंगे, इनको पता नहीं कैसे इनका सारा फाइनेंसिस का होगा मसला, तो हम उनके लिए पैसे जमा करें तो हमें पैसे दे दें. मैं पैसे जमा कर लेती हूँ और अगले दिन मैं कह देती हूँ जी आप लॉकडाउन खोल लें भैया, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं मर जाता. तो मतलब इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं पाकिस्तान में कि हाँ शायद बाहर अगर हम लोग होते, बाहर हम लोग लगाते, हम लोग दिखाते कि अच्छा हाँ जी आपने इतने पैसे दिए थे, आपने 2 दरख्त के पैसे दिए थे, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, मैंने 3 दरख्त लगा दिए. तो मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में कभी भी अगर मुझे कोई, जैसे अब रमज़ान में या कहीं भी होता है चैरिटी बॉक्सेस वगैरह, जो राशन पैक्स वगैरह होते हैं, वो बंदा थोड़ी सी एफर्ट करे और जाके खुद देके आए. आपको लगता है कि हाँ लोगों को चाहिए, आपके पास जितने पैसे आपने लगाने उसमें आप खुद जाओ, खुद जाके दे के आ जाओ, खुद सेव कर लो ना पैसे. आप अपने फैमिली वालों से ले लो, आप अपने कजन से ले लो. तुम मुझसे अगर कहोगे कि हाँ मैंने राशन देने, तो मैं तुम्हें फौरन दे दूंगी. लेकिन अगर मुझसे कुछ obviously एक अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट है कि हाँ शावीर दे रहा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी नीयत पे होती हैं कि हाँ मैंने पैसे दे दिए, मेरी तरफ से नीयत होगी. लेकिन इतने आप डम ना हो जाए कि आपको पता है कि बस पैसे जा रहे हैं और आगे जाके पता नहीं क्या हो रहा है. तो इस पे फिर आपकी नीयत, ठीक है नीयत आपकी वो तो अल्लाह में की बात करती है, लेकिन यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट, इफ यू नो कि आपके पैसों से करप्शन हो रही है, तो यू वुडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट. एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट डोनेशंस वाला जो सिस्टम है ना पाकिस्तान में, ये बहुत बुरा है. Like everybody is asking for donations and you don't see anything happening. Yeah, I understand that. छोटे लेवल पे हो रही हो या शायद honestly like with donations, you know, like they're very iffy. Like I'm not sure what happens with donation money. Like somebody told me, I used to work at Walmart at the time, और वहाँ पे हम लोग एक चीज़ प्रमोट किया करते थे, Red Cross. So ये Red Cross एक इसी तरह की एक डोनेशन की कंपनी थी, कोई जो भी कहते हैं उसको. And they were helping people around the world, people in need basically, जिनके पास पैसे नहीं है वगैरह वगैरह. वो दुनिया में हर जगह काम करते हैं. And somebody came up to me and was like, and as a cashier, I had to
sell the Red Cross, as in ke, would you like to donate $1? So we would quickly scan it one time, and एक $1 करके अगर हजारों लोग कर रहे हैं तो it adds up, right? So one guy told me no, and I was like, okay. And then he just felt the need to explain why. He was like, listen, like, it doesn't matter, like $1 doesn't $1 count की much. बात But नहीं है, like, exactly. he said to me something that I didn't forget to this day. He's like, what do you think? What happens with this money? You think like I donate $1 goes to donation? I'm like, I think so. And he's like, no, I donate $1 and less than 40 cents go to donation. The rest of the money goes into marketing. The rest of the money goes into like all of these other things that, we don't even know about. And I was like, man, that actually makes sense. Like, and then I realized, like, I don't think Walmart is doing it in good faith. Walmart is charging Red Cross to be a part of their cashier selling token. बिल्कुल. क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जिन्होंने बिड किया होगा कि यार Walmart आप हमारा रखें, आप हमारा रखें. Walmart बिल्कुल. probably picked the biggest bid. हाँ. You know what I mean? So I understand with donation, तो but मुझे बस ये है कि पाकिस्तान में I can't trust anyone. कि आप रिलेशंस के अंदर क्यों घुस जाती हो? नहीं, मतलब ट्रस्ट एज इन इस तरह की चीजों पे. And that's why I'm single. And that's why we end this shit here. हाय, वो कैमरे को इसी के आगे लेके खड़ा हुआ है, वो देखो उसको देखो. Guys, I think our cameras are overheating because we're recording 4K for the first time. अपनी तरफ से थोड़ी सी quality increase की, but just look at this camera. We're just going to end the podcast right here. Thank you so much, Sundas. It was a very, very enlightening conversation today. I loved the conversation today. We should do more of this. It was a lot of fun. And thank you so much for watching, guys. Thumbs up if you enjoyed the podcast. That kind of shows all the love that you guys have to give us. And we're just about to hit 500k. Oh yeah, that's also true. Subscribe to the channel and and subscribe love to us. the channel. Thank you, please. We need love, please. We both. Okay, guys. Okay, Allah Hafiz. Peace out. Bye. Take Bye. care.